क्वेश्चन इज इफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ tan inverse x under root 6 where x is not equal to 0, then we have to find all the possible value of x. okay, तो देखिए इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं cot of sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ, तो देखिए tan इनवर्स x अंडर रूट 6 इसको हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स के रूप में, और ये होगा, तो देखिए आइडेंटिटी होती है हमारे पास दैट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो इसको हम यूज करेंगे. सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है x अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज x अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर. ओके, cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cot के फॉर्म में, सो दिस cot इनवर्स के रूप में. सो दिस इज cot इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 6 होल स्क्वायर इज 6 दैट इज 6x स्क्वायर. ओके, तो देखिए cot of cot inverse x is equal to x, so this is x upon under root of 1 minus x square. Similarly sin of sin inverse x is equal to x, so that is x under root 6 divided by under root of 1 plus 6x square. okay, तो देखिए x से x कैंसिल करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड, so this gives 1 upon 1 minus x square is equal to under root 6 का स्क्वायर is 6 upon 1 plus 6x square, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so this will give 1 plus 6x square is equal to 6 minus 6x square. So this implies 6 plus 6 that is 12x square is equal to 6 minus 1 that is 5. So this implies x square is equal to 5 upon 12. Okay, so therefore x is equal to plus minus under root 5 upon 2 under root 3. So therefore the value of x for which the above equation satisfy is plus minus under root 5 upon 2 under root 3. So this is the answer. In this question we have to prove cos of tan inverse sin cot x is equal to root of x square plus 1 by root of x square plus 2. So let us start. Here LHS is equal to cos of tan inverse sin cot inverse x can be written in the cot inverse x को हम sin के टर्म में क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं उसको लिख दिया. अब इसके बाद फिर मुझे cos ऑफ tan इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब उसके बाद फिर मैं आगे अब cos, इसको भी मैं cos के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, cos के टर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos ऑफ cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. cos इनवर्स पूरे में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये 1 प्लस 1 मिलके क्या होगा 2 होगा. तो अब cos इंटू cos इनवर्स थीटा हो गया, तो मैं थीटा डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू RHS, hence verified. तो यही हमारा आंसर आएगा.
I hope you guys will get it. Thank you. In this question, we have given that find the value of cos bracket to cos inverse x plus sin inverse x at x is equal to 1/5. Here pi greater than 0 or sin inverse x lies between minus pi by 2 to pi by 2. Let's start the question. Cos 2 cos inverse x plus sin inverse x. Cos 2 cos inverse x can be written as cos inverse x plus cos inverse x plus sin inverse x as it. Here we will fill the value of cos inverse x plus sin inverse x. As we know that cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2. So, cos bracket cos inverse x plus pi by 2. Pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta minus sin cos inverse x. Here theta is cos inverse x, so value is minus sin cos inverse x. Now we will solve this. Now we will fill the value of a cos inverse x as cos inverse x is equal to sin inverse square root of 1 minus x square. So, this is equal to minus sin inverse square root of 1 minus x square, which is equal to minus square root of 1 minus x square. As we know, the value of x is 1/5. We fill this value, so we get minus square root of 1 minus 1/5 whole square, which is equal to minus square root of 1 minus 1/25 is equal to minus square root of 24 upon 25, which is equal to minus 2 square root of 6 upon 5. This is the answer of our question. Hello student, so the question is find the value of sin inverse 12/13 minus sin inverse 3/5. सो देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें sin इनवर्स 12/13 माइनस sin इनवर्स 3/5. नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू sin इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. देन यहाँ पे देखिए x इक्वल टू दिया है 12/13 एंड y इक्वल टू दिया है 3/5. यहाँ एक कंडीशन होती है कि x, y जो है वो हमारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. देन देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x की जगह पर 12/13 रखते हैं और y की जगह पर 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25
माइनस बाई की जगह पर 3/5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स यानी 12/13 इसका होल स्क्वायर ही हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 169। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16/25 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144 तो यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 169 इंटू उसका स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 5/13। देन देखिए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12 इंटू 4 48 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 65 माइनस 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाई 65। देन यहाँ से ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 48 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 65। नाउ यहाँ से देखिए ऑप्शन में हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन दिए, सब में पाई दे रखा है तो हमें इसको चेंज करना होगा अभी। तो चेंज में हमारा एक प्रॉपर्टी होती है हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देन सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देन यहाँ से ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है 33 डिवाइड बाई 65 तो मैं साइन इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65 को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स 33/65। नाउ अब ऑप्शन चेक करते हैं। देन देखिए π/2 यहाँ दे रखा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करता हूँ। देन देखिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हमारा साइन इनवर्स, ये ट्राइंगल से समझ लेते हैं, यहाँ ये एक्स दे रखा है ये 1 दे रखा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 33 डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर, 33 डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। देन देखिए यहाँ से ये बन जाएगा हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 33 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 65 का होल स्क्वायर माइनस 33 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। देन ऐसे देखिए a माइनस बी प्लस बी लगाते हैं तो ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। नाउ देखिए 98 को मैं लिख सकता हूँ 7 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 32 डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। देन 32 इंटू 2 64 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर इंटू 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 57 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से ये आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 65। ना ऑप्शन देखते हैं तो देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 65 तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। So this is the solution of this question. Okay. Hello student. So the question is if cos inverse x minus cos inverse π/2 equal to alpha where x belongs to -1 to 1 and y belongs to -2 to 2
and x less than equal to by 2, then for all x comma y find the value of 4x square minus 4x by cos alpha plus by square. नाउ देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स by 2 इक्वल टू अल्फा. नाउ हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है हमारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स by इक्वल टू cos इनवर्स x by प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस बाई स्क्वायर, वेयर x लेस देन बाई. तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर तो x है बट बाई की जगह पर बाई 2 है, तो x लेस देन बाई 2 होना चाहिए और वही हमें डेफिनेशन में दिया भी है. एंड x की वैल्यू देखिए -1 to 1 दी गई है एंड बाई की वैल्यू -2 to 2 दी गई है, तो बाई 2 की वैल्यू -1 to 1 हो जाएगी. सो ये कंडीशन भी फुल हो रही है. यहाँ होता है हमारा मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ बाई लेस देन इक्वल टू 1 ये होती है. सो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाले फॉर्मूले का. देन देखिए यहाँ से ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स x इंटू बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू अल्फा दिया है. देन यहाँ से देखिए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. तो देखिए cos इनवर्स को जब मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा x बाई डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू cos अल्फा. नाउ इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू cos अल्फा माइनस एक्स बाई 2. मैं x बाई 2 को राइट साइड में लेंगे बस सिंपली. नाउ अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट. तो यहाँ देखिए यहाँ तो हो जाएगा हमारा सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई 4 एंड राइट साइड में देखिए राइट साइड में हो जाएगा cos अल्फा माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. देन a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 2 cos अल्फा एक्स बाई 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा cos अल्फा एक्स बाई cos अल्फा. नाउ देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 से एक्स स्क्वायर बाई 4 भी कैंसिल हो गया एंड यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा. देन यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा. नाउ अब हम बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच टर्म में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x बाई cos अल्फा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर अल्फा. क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चन वैल्यू पूछी थी 4x स्क्वायर माइनस 4x बाई cos अल्फा प्लस बाई स्क्वायर की. तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x बाई cos अल्फा प्लस बाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 4 sin स्क्वायर अल्फा. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
ओके।